শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ। শ্রী গুরু বন্দনা করি তাহার চরণ ধরি, শ্রী ভক্তি সিদ্ধান্ত প্রভুপাদ। আর যত শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্প তরু, কৃপা কর ঘুচুক বিশাল। আর যত শিক্ষা গুরু সবে বাঞ্ছা কল্প তরু, কৃপা কর ঘুচুক বিশাল। রূপ সনাতন প্রভু গৌরী আচার্য বিভু, আর সেই ভট্ট রঘুনাথ। রূপ সনাতন প্রভু গৌরী আচার্য বিভু, আর সেই ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে যে সংঘট্ট, মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট বৃন্দাবনে যে সংঘট্ট, মিলে প্রভু দাস রঘুনাথ। গোস্বামী প্রভুর গণ আশয় সেই শ্রীচরণ, অন্য মোর কিছু আশা নাই। গোস্বামী প্রভুর গণ আশ্রয় সেই শ্রীচরণ, অন্য মোর কিছু আশা নাই। তার মধ্যে যে শ্রীজীব উজ্জ্বল আচার্য দীপ, দিয়াছেন চরণেতে ঠাঁই। তার মধ্যে যে শ্রীজীব উজ্জ্বল আচার্য দীপ, দিয়াছেন চরণেতে ঠাঁই। অমিষে দুর্মতি অতি বিষয় ভোগেতে মতি, কৃপা করিয়া নীল টানিয়া। আমিষে দুর্মতি অতি
বিষয় ভোগেতে মতি কৃপা করিয়া নিল টানিয়া। মূর্খময়িনী চয়তি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা বাড়ি দিল সে সিঞ্চিয়া। মূর্খময়িনী চয়তি শ্রী সিদ্ধান্ত সরস্বতী কৃপা বাড়ি দিল সে সিঞ্চিয়া। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবা। পতিত পাবন প্রভু নিত্যানন্দ গৌর বিভু শ্রী অদ্বৈত কৃপা পারাবা। শ্রীবাসাদি গদাধর কৃপা করো এ কিঙ্কর বুঝিলাম তব কৃপা সার। শ্রীবাসাদি গদাধর কৃপা করো এ কিঙ্কর বুঝিলাম তব কৃপা সার। বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। বৃন্দাবন রম্যস্থান সেবা কুঞ্জ তার নাম শ্রী রাধা দামোদর স্থিতি। তাহার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি। তাহার চরণে মই একান্ত আশ্রয় লই কৃপা করি কর মোর গতি। শ্রী গীতার গান এই তোমার চরণে থুই লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি। শ্রী গীতার গান এই তোমার চরণে থুই লহ মোর এই পুষ্পাঞ্জলি। কি জানি কি লিখি আমি একান্ত ভরসা তুমি যে লিখাও সেই পদ্মাবলী।
কি জানি কি লিখে আমি একান্ত ভরসা তুমি, যে লেখাও সেই পদ্মা বলি। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই অমর নিত্য কালয়া। অভয় চরণ তব আশ্রয় সর্বদা রব, এই মর নিত্য কালয়া। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার ফাঁদ। ভক্তি বেদান্ত বলে আমি কিন্তু দাস হলে, বিমোচন এ মায়ার ফাঁদ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা, প্রভুপাদা জয় প্রভুপাদা। जगतगुरु शिल प्रभुपाद की, शिल प्रभुपाद स्थित गीतार गान की, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा जी की, कृष्ण बलराम भगवान की, पतित पावन गौनिताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, भक्ति विघ्न विनाशन नृसिंहदेव भगवान की, सागर गौर भक्त गौर प्रमानंद। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी,
विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो हम कल्पना नहीं कर सकते प्रभुपाद हमको क्या दिया है। प्रभुपाद बहुत कुछ दिया है। प्रभुपाद हम गिनती करेंगे, हाँ, सभी हजार हजार बता सकते। एक भक्त क्या दिया, बोला हमको 1 घंटा भागवत क्लास सुनने का टाइम दिया। प्रभुपाद ये सिस्टम नहीं करते तो नहीं होता। तो इस तरह प्रभुपाद बहुत कुछ दिया है, इस्कन दिया है, महाप्रसाद दिया है, बहुत कुछ। तो उसका असंख्य चीज में एक चीज है ना, श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ प्रभुपाद खास करके उनका गुरुदेव का आदेश अनुसार अंग्रेजी भाषा में दिया है, लेकिन फिर भी उनका गुरु का आदेश था अंग्रेजी भाषा प्रचार करना। लेकिन हृदय में जो कोई भावना आया तब उन्होंने उसको रोक नहीं पाता, बांग्ला में उन्होंने व्यक्त किया है। जिस तरह उन्होंने मार्किने भागवत धर्म जो जहाज में लिखा है, श्री कृष्ण पादपद में विज्ञप्ति कृष्ण तबे पुण्य हुए भाई, गुरु के उद्देश्य विरह अष्टकम, वैशिष्ट अष्टकम, वृंदावन भजन। उसी तरह उन्होंने भगवत गीता बांग्ला कविता के रूप में संपूर्ण प्रदान किया है। गीता जी से 700 श्लोक, प्रभुपाद इसको अनुवाद किया लगभग 1500 श्लोक, डबल लगभग किया 1900 के आसपास। और प्रभुपाद अमेरिका जाने के 3 साल पहले उन्होंने ये रचना 1962 में, और वृंदावन में जब रहते थे, जब राधा दामोदर मंदिर में, तब उन्होंने रचना किया। और उनका श्रील प्रभुपाद का संन्यास दीक्षा गुरु मथुरा में रहते थे, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, उनका मठ से प्रचारित जो पत्रिका है, वो पत्रिका में ये गीतार गान प्रकाशित हुए थे। इस्कॉन में जब पहले इंग्लिश स्वर का दूसरा कोई पुस्तक नहीं था, तो बांग्ला एक ही पुस्तक था, गीतार गान। ये गीतार गान प्रचार होते थे। बंगाल में केवल प्रभुपाद का एक ही पुस्तक प्रचार होते थे, गीतार गान। ये वेदावेश में मिलते हैं गीतार गान, GITAR गीतार। तो एक भक्त में गीतार गान है, तो बोले हम तो सोचता गिटार, GITAR गिटार बजाते ना, हमसे गिटार गान, इसीलिए कभी खोला ही नहीं इसको। तो गिटार गान नहीं है। और तो एक ही तरीके होता ना, तुलसी महारानी। तो उसको इंग्लिश में 26 लेटर है, संस्कृत में 50 लेटर है, इसीलिए थोड़ा उच्चारण में मुश्किल है। तो गीतार गान को गिटार गान करके वो देखा ही नहीं कभी। जो गीतार गान, भगवत गीता, ये तो भगवत गीता शब्द होता है गान, गीत शब्द होता है गान। कृष्ण ने जो गान गाया उसका नाम भगवत गीता। और इस तरह बहुत गीता है, भ्रमर गीता, भिक्षु गीत, और क्या गीत है, रुद्र गीत, वेणु गीत, भूमि गीत, बहुत गीत है। लेकिन उनमें से सबसे फेमस कृष्ण है, इसलिए कृष्ण का गीता उसका अलग नाम हो गया भगवत गीता। नाम अर्थात गीता, अर्थात भगवत गीता है। और वो गीता प्रभुपाद फिर उनको बांग्ला कविता रूप में दिया, इसलिए गीतार गान। श्रीमद् भक्ति चरित्र गुरु महाराज ने 1995 1995 उन्होंने इसको एक ऑडियो बनाया, एक प्रोफेशनल के द्वारा, कैसेट के माध्यम, 6 कैसेट में गीतार गान प्रोफेशनल के द्वारा। वो जहाँ जो अभी मंगलाचरण का सुर गाया है, ये श्रीमद् भक्ति चरित्र गुरु महाराज का दिया हुआ सुर है। तो उन्होंने 95 में उन्होंने अभी वह हमारे
अवेलेबल है। कौन चैनल में? उज्जैन चैनल, उज्जैन चैनल। हाँ वीडियो नहीं, ऑडियो कौन सा चैनल में बाजे? हाँ, इस्कॉन डिजायर ट्री में अभी अवेलेबल है गीतार गान के रूप में। और श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी महाराज जब मायापुर बीबीटी का ट्रस्टी इंचार्ज थे, तब उन्होंने बांग्ला जो भगवत गीता है उसका अंदर भी इसको एक शब्द दिया था। जिस तरह हम गीता में देखते हैं संस्कृत श्लोक, शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य 4, उन्होंने इसका अंदर और एक ऐड कर दिया। गीता पहले संस्कृत श्लोक, शब्दार्थ, उसके बाद गीतार गान, उसके बाद अनुवाद, उसके बाद तात्पर्य। तो ये गीतार गान बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्रील प्रभुपाद उन्होंने उनका कृष्ण भक्ति और कृष्ण भक्ति प्रचार में सफल है, इसीलिए हमें कोई क्षेत्र में सफल व्यक्ति को अनुसरण करना चाहिए। यह प्रभुपाद जो भगवत गीता में जो भूमिका मंगलाचरण लिखा है, यह से पता चलते हैं भक्तों का मनोभाव किस तरह होना चाहिए। तो आज हम मंगलाचरण देखेंगे प्रभुपाद किस तरह मंगलाचरण किया है, कोई भक्तों को किस तरह गुरु पूर्वतन आचार्य भगवान के चरण में किस तरह शरण लेना चाहिए, किस तरह प्रार्थना करना चाहिए, यह हम बहुत कुछ सीखने का मिलता है। श्री गुरु वंदना कोरी ताहार चरण धरी श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद। पहले उन्होंने प्रणाम जनाता है दीक्षा गुरु। श्री गुरु वंदना कोरी में मेरा परमाराध्य गुरु महाराज ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति सिद्धांत चरण कमल पकड़ करके उनको मैं उनका चरण वंदना कर रहा हूं। और उनके साथ साथ जितना सारे शिक्षा गुरु है, आर जत शिक्षा गुरु सबे वांचा कल्पतरु कृपा करो घुचुक विशाल। और जितना सारे शिक्षा गुरु है, सारे वैष्णव शिक्षा गुरु, विशेष करके हमारे पूर्वतन जितना सारे आचार्य हैं वो सब शिक्षा गुरु है। सभी वैष्णव शिक्षा गुरु है, लेकिन वो अलग वैष्णव के उतना हम ऋणी नहीं है डायरेक्टली, लेकिन हम डायरेक्टली ऋणी है हमारे पूर्वतन आचार्य, क्योंकि हमारे गुरु उनका गुरु के पास सीखा, उन्होंने उनका गुरु पास। यद्यपि पूर्वतन आचार्य हमारे दीक्षा गुरु नहीं है लेकिन शिक्षा गुरु है। तो इसीलिए और जो तो शिक्षा गुरु सभी वांचा कल्पतरु, ये सारे शिक्षा गुरु है, सब वांचा कल्पतरु है। आप लोग सारे मुझको कृपा कीजिए, मेरा कृपा करो घुचुक विषाद, मेरा जो विषाद दुख कष्ट मुझको नाश हो जाए, ये प्रार्थना उनका करना। और ये जो मंगलाचरण सामान्य रूप में होते हैं और विशेष रूप में होता है। सामान्य रूप और विशेष रूप। सामान्य रूप में क्या है, सबको एक साथ। विशेष रूप में सब व्यक्तिगत है। जिस तरह वंदे गुरु निशो भक्ता निशो मशोवतार कान, सब सामान्य रूप से सबको क्या, वंदे गुरु निशो भक्ता निशो मिशोवतार कान तत्प्रकट, सबको एक साथ। लेकिन फिर भी विशेष रूप से वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, विशेष रूप से। तो साधारण रूप से और विशेष रूप से। उसी तरह हम देखते हैं कृष्ण का प्रणाम मंत्र में देखते हैं करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपति। जगतपति में विशेष करके गोपेश, ब्रजवासी के, ब्रजवासी से विशेष करके गोपी का, गोपी से विशेष करके राधा का, राधा का नमस्ते। तो साधारण रूप में विशेष रूप में, या साधारण रूप में सारे वैष्णव दीक्षा गुरु, सारे शिक्षा गुरु। शिक्षा गुरु सारे में इसमें रूप सनातन स्पेशल है, सारा गोस्वामी स्पेशल है। जिस तरह पूर्वोत्तर आचार्य सभी है बहुत, लेकिन क्या हम वो सेम कैटेगरी में प्रभुपाद को रखेंगे? नहीं, प्रभुपाद का पोजीशन थोड़ा विशेष है। रूप सनातन प्रभु गौरी आचार्य प्रभु, इनका विशेष, ये हमारे शिक्षा गुरु में विशेष है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी।
और गौरी आचार्य विभु, गौरी संप्रदाय जितना सारे आचार्य है उनमें से विभु है। हम जानते हैं विभु आता 12 अनु और विभु। तो गौरी संप्रदाय जितना सारे आचार्य है, सबसे आचार्य ये दोनों है। हाँ, सबका लीडर है सारे। अभी नहीं, उसी समय में चैतन्य चैतन्य में लिखते हैं कविराज गोस्वामी, रूप सनातन इतना प्रिय थे, केवल केवल जूनियर के नहीं, सीनियर जूनियर सबको उन्होंने लिखते हैं गौरव गौरव और एक शब्द है, जो बड़ा है वो भी स्नेह करता है और जूनियर वो भी श्रद्धा करता है, इतना प्रिय थे। और कोई भी वृंदावन से बंगाल में उड़ीसा में आते थे, सब उनके पास मिलते थे, आप बताइए रूप सनातन कैसे है। तो दूसरा खबर नहीं लेते थे, रूप सनातन कैसे है, उनका दिनचर्या कैसे है, और सुन के आश्चर्य होता है कि ऐसे होता है क्या, जीवन इस तरह हो सकते है, एक एक पैर के नीचे एक एक दिन। फिर बोलते नहीं, क्या असंभव है, जिसको चैतन्य महाप्रभु कृपा मिला है उनके लिए क्या असंभव है। तो इसी तरह रूप सनातन उसी समय इतना फेमस थे, अभी नहीं, अभी तो है। उसी समय रूप सनातन प्रभु गौरी आचार्य और সেই ভট্ট রঘুনাথ ভট্ট श्रीजीव गोपाल भट्ट वृंदावने जी संगठन मिले प्रभु दास संगठन था इकट्ठा। तो उनके साथ और 3 आगे हैं, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ दास। ये 6 गोस्वामी एक साथ होकर गोस्वामी प्रभुर गण आश्रय से 6 चरण अन्य मोर किछु आशा नहीं। हमें प्रभुपाद क्या कहते हैं, केवल 6 गोस्वामी का चरण का आश्रय मेरा है और जीवन मेरा और कोई आशा नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में भी इस तरह होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद, हमारी गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, इनको चरण में आश्रय लेना चाहिए और जीवन में दूसरा कोई आशा नहीं होना चाहिए, अन्य मोर किछु आशा नहीं। लेकिन उनमें से भी विशेष है, तार मध्य श्रीजीव उज्ज्वल आचार्य दीप दिया छेन चरणेते ठाई। ये छवि, ये पिक्चर याद है, ये किसके पिक्चर है? नित्यानंद प्रभु पहले जीव गोस्वामी को नवद्वीप मंडल परिक्रमा कराया पहला, और यह उन्होंने अद्भुत मंदिर भी दर्शन कराया। तो जीव गोस्वामी बहुत स्पेशल है। हाँ, तार मध्य 6 गोस्वामी में तार मध्य जो श्रीजीव उज्ज्वल आचार्य दीप, ये एक एक आचार्य की किसके साथ तुलना दिया है? दीप, अलग अलग टाइम अलग अलग, चंद्रमा के साथ तुलना दिया, तारा के साथ तुलना दिया। हाँ, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चंद्र, बाकी सब पश्चात तारा है। फिर कोई कोई जगह सबे चंद्रमा है। तो आचार्य लोग पूर्वतन आचार्य को महिमा कीर्तन करते लग रही नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, और थोड़ा कुछ बोलना चाहिए। तार मध्य जो श्रीजीव उज्ज्वल आचार्य दीप, ये सभी तक एक दीप है, लेकिन इनमें जीव गोस्वामी सबसे उज्ज्वल आचार्य है, क्योंकि जीव गोस्वामी जो पंडित तो दिखाए हैं वो दूसरा आचार्य दिखाए नहीं। कोई कम नहीं था, भगवान जिसके माध्यम जो कराएंगे, जो 60 छंद रचना किया है, वो कल्पना नहीं कर सकते कैसे एक व्यक्ति इस तरह चीज लिख सकते हैं। और जीव गोस्वामी जितना श्लोक लिखा है उसका संख्या कत पता है? 4 लाख। कल्पना कर, 4 लाख संस्कृत श्लोक लिखना। हम 700 श्लोक पढ़ने, गीता का श्लोक पढ़ने की अवस्था था। हरे कृष्ण। श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गोविंद जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा नृसिंहदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत में कितना श्लोक? 18,000। रामायण में 60,000। महाभारत में 1 लाख। भगवत गीता में 700। कुल मिला के कितना होता है? 2 लाख ही नहीं होते। और जीव गोस्वामी लेखा 4 लाख। और देख के नहीं लिखा, संस्कृत श्लोक रचना करना। और इस तरह नहीं, इस तरह श्लोक नहीं, तुम्हें थाको तेतला हमें थे पेड़ के तला है, तुम्हारे मिला से तला है, इस तरह कुछ नहीं है। ये श्लोक उसका भक्ति का सिद्धांत दिया है इसका, और संस्कृत में
तो इस तरह उन्होंने एक आचार्य थे जीव गोस्वामी, उन्होंने हमको ये कहानी पता है, जो एक पंडित है दिग्विजयी रूप गोस्वामी हरा के जा रहे थे, छोटे बच्चे उनको हाथी से उजारा, मतलब मेरा साथ तर्क करो। हाँ, बांग्ला में एक अच्छा कविता है, उसका नाम त्रिरत्न। तो एक दिग्विजय पंडित है रूप गोस्वामी, सुना जी वृंदावन में सबसे बड़ा पंडित रूप गोस्वामी है। तो रूप गोस्वामी का भी गया, बोल मैं आपको शास्त्र तर्क करना चाहता हूँ। तो रूप गोस्वामी बोले क्यों? बोले नहीं, मैं सुना आप बहुत बड़ा पंडित है। बोले नहीं, मैं तो पंडित नहीं हूँ। बोले फिर लिख के दो। मैं हार गया। बोले हाँ दे दो। वो लिख के दे रूप गोस्वामी, कि कौन टाइम नष्ट करेगा उनके साथ में। रूप गोस्वामी लिख दिया मैं हार गया। तो उन्होंने वो सर्टिफिकेट लेके हाथी चढ़ के दोला बजा के आ रहे थे, जा रहे थे। और जीव गोस्वामी जमुना से स्नान करके आ रहे थे। बोले मेरे गुरु महाराज का, हाँ गुरु जी का कुटिया से इस तरह कौन ढक कर जाता है? तो सामने गया, बोले इस तरह रूप गोस्वामी का हारा क्या? रूप गोस्वामी हारा क्या? बोले आप उतारे मोड़े सतर्क करो। तो जीव गोस्वामी उनके साथ, चलो बच्चा था तब, तो तर्क में हरा, और उन्होंने वो सर्टिफिकेट फाड़ के हाथी घोड़ा ढाक ढोलक छोड़कर पैदल में चले गए, अपमानित होकर। तो ये खबर रूप गोस्वामी का जाने से रूप गोस्वामी बहुत नाराज हो गया। बोले तुम वृंदावन में आए इस तरह अहंकार, अहंकार के साथ वृंदावन भजन नहीं होता है। ये भावना लेके वृंदावन है, तुम यहाँ से चले जाओ। तो रूप गोस्वामी जीव गोस्वामी भगा दिया। और सनातन गोस्वामी वृंदावन में खबर चलेगा सनातन गोस्वामी के पास। हाँ, जीव गोस्वामी खाना पीना बंद करके अनशन किया है, अभी गुरु त्याग किया है, तो उसका जीवन रखना क्या जरूरत है। ये खबर सनातन गोस्वामी के पास गया। सनातन गोस्वामी कहा है, रूप गोस्वामी को समझा, ये तुम महाप्रभु का शिक्षा जीवे दया, तो जीव को कहा दया कर रहे हैं। तो इस तरह था जीव गोस्वामी, इतना बड़ा पंडित। तार मध्य जे श्रीजीव उज्ज्वल आचार्य दीप दियाছেন चरणेते ठाई, उन्होंने चरण में स्थान दिया। इसका अर्थ क्या है? उन्होंने कहा रहते थे जीव गोस्वामी के मंदिर का, राधा दामोदर मंदिर, दियाছেন चरणेते ठाई। इसका अर्थ शिल प्रभुपाद कहा रहते थे ये जीव गोस्वामी के जो मंदिर है राधा दामोदर मंदिर, वह रहते थे, वह बैठ के नहीं लिख रहा है, ये भगवान का आयोजन है। प्रभुपाद उधर में संन्यास लेकर प्रचार कर रहा है, लेकिन वृंदावन मथुरा जाना आना करना, वृंदावन में परमानेंट प्लेस भी नहीं है। प्रभुपाद के तरह व्यक्ति के लिए एक जगह नहीं वृंदावन में, लेकिन भगवान का कुछ आयोजन है। तो जब प्रभुपाद प्रणाम करने गया, उन्होंने पंडित जी ने आके कहा आप यह रुक सकते। तो प्रभुपाद ने किराया में, वो अभी जो मकान है किराया में प्रभुपाद हुआ रहते थे, लेकिन प्रभुपाद ने सोचा नहीं मैं किराया में रुक रहा हूं। यह प्रभुपाद कितना का क्या बोला, उन्होंने जीव गोस्वामी ने मुझको चरण में स्थान दिया। कि भावना क्या होता है, हम पैसा से किराया लेते थे, मैं का पैसा से किराया, लेकिन प्रभुपाद का मनोभाव क्या है, जीव गोस्वामी ने मुझको चरण दियाছেন चरणेते ठाई, जीव गोस्वामी कृपा करके राधा दामोदर मंदिर में उसका स्थान दिया। आमिषे दुर्मति होती विषय भोगेत मोती, कृपा करी अनिल टानिया। भक्त का और एक मनोभाव होता है, भक्त नहीं कभी सोचता है मैं बहुत बड़ा कुछ हूं, भक्त हमेशा सोचता है मैं बहुत दुर्भाग्य हूं। आपको यदि पूछेंगे अच्छा आपका भक्ति में कौन स्तर में है, ये आदु श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, भाव, प्रेम, आप कौन स्तर में है? क्या आंसर देंगे? प्रेम। कौन सा स्तर में क्या उत्तर देंगे? हाँ, क्या उत्तर देना चाहिए? कौन सा स्तर में है? कोई तो पूछेगा कौन सा स्तर में है? हाँ, हमें उत्तर मैक्सिमम को यह हो सकते, अभी श्रद्धा के साथ इस्कन में आया है और साधु संग कर रहा है, साधु ने हमको हरि नाम करने से भजन क्या कर रहा है, अभी वो अनर्थ निवृत्ति की लड़ाई कर रहा है, यह तक है, उसका आगे कैसे जा सकते हैं? हमारी स्थिति उतना है, साधु संग करने के लिए आया है और हमको माला भजन किया करने के दिया और हम
अनर्थ निवृत्ति, मंगल आरती नहीं उठ पा रहा है, गुलाब जामुन खाना छोड़ नहीं पाता है, भागवत क्लब आने की इच्छा नहीं करता है, अनर्थ के साथ हम लड़ाई कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति के स्तर में। और यदि बोले नहीं नहीं अभी तो भजन क्रिया शुरू हुआ नहीं है, ये जोर से कर रहा है, गुरुदेव बोला है नहीं करेंगे तो भाई पाप लगेगा इसीलिए कर रहा है, रुचि कहाँ है? और साधु संग तो रुचि नहीं, जिसको साधु ही नहीं देख रहा है किसी को, तो साधु संग कहाँ हो रहा है? तो भक्त हमेशा खुद को इस तरह दीनहीन समझते हैं। तो प्रभुपाद बोलता है मैं उस तरह बहुत दुर्मति हूं। दुर्मति शब्द अर्थ क्या है? जिसका मति बहुत बिगड़ा है, जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं। आमिष दुर्मति होती, दुर्मति का लक्षण क्या है? विषय भोगते मति। दुर्मति अर्थात जो केवल विषय भोग करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते। तो मैं इस तरह दुर्मति था, विषय भोग में मेरा मति था, संसार करते थे, नौकरी करते थे, लेकिन मेरा गुरुदेव ने कृपा करी अनिल टानिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती मुझको कृपा करके खींच के लेकर आया। मूर्खमय नीचे होती श्री सिद्धांत सरस्वती कृपाबारी दृढ़ शेषन। मैं बहुत मूर्ख था, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत कृपा करके उनको कृपाबारी सिंचन करके दिया। हमेशा वैष्णव को हमेशा इस तरह समझना चाहिए, नहीं मैं बहुत बड़ा इंजीनियर डॉक्टर था, मैं बहुत अमीर आदमी था, इसीलिए गुरु महाराज को बुलाया, बा तुम हमारे मंदिर रहो तो रहोगे, हमारे कुछ होगा, इसीलिए नहीं बुलाया हमको। हमको उनको पता है हम कितना खराब है, हम ये नहीं रहेगा बाद में किया कितना गति हो। वैष्णव को इस तरह मनोभाव होता है, हमेशा इस तरह। ये प्रसंग में शिशुमत भक्ति चर्चा में गुरु महाराज में उनका आर्टिकल पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा मुझको प्रभुपाद ने लास्ट में बहुत कृपा किया। इसका कारण था मैं सबसे छोटा था, मैं बहुत लेट में ज्वाइन किया, मतलब मैं सबसे छोटा भक्तों के बीच में, इसके छोटों को ज्यादा कृपा करना चाहिए, इसलिए गुरु महाराज प्रभुपाद ने मुझको ज्यादा कृपा किया। कभी नहीं भक्त सोचते हैं हम बहुत योग्य हूं इसलिए गुरुदेव कृपा किया, तो कभी कृपा कभी मिलेगा ही नहीं। यह प्रभुपाद लिखता है आमिष दुर्मति होती विषय भोगती मोती कृपा करी अनिल टानिया। मूर्ख मोई नीचे होती, मैं बहुत मूर्ख था, लेकिन श्री सिद्धांत सरस्वती कृपावारी दिलो से सिंच, उन्होंने मेरा पर कृपावारी से दिया था। और मैं इतना पतित हूं, एक दो व्यक्ति के कृपा से मेरा नहीं चलेगा, बहुत मेरा चिकित्सा करने के लिए एक डॉक्टर का बोर्ड बैठना पड़ेगा। जो हॉस्पिटल में जो बीमार होता है ना, डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है, जो क्रिटिकली बहुत सीरियस है उसको डॉक्टर लेके बोर्ड बनाना पड़ता है, ग्रुप बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे बीमार इतना ज्यादा है। इस तरह नहीं हमें किसी को भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए हम इतना पतित है, हमको सबको कृपा चाहिए। पतित पावन प्रभु नित्यानंद गौरव विभु श्री अद्वैत कृपा पारावार श्रीवासादि गदाधर कृपा करो किंकर बुझिलाम तब कृपाशा। पतित पावन प्रभु नित्यानंद अद्वैत गौरांग महाप्रभु अद्वैत आचार्य कृपा का सागर है, श्रीवासादि गदाधर कृपा करो किंकर, मैं आप सब लोग का दास हूं, बुझिलाम तब कृपासार, मैं इतना दिन ये इतना तक समझ गया आपका कृपा छोड़ के मेरा कोई रास्ता नहीं। बुझिलाम तब कृपासार, इतना दिन में इतना समझ में मुझको आया आपका कृपा छोड़ के मेरा कोई उद्धार का कोई रास्ता नहीं, और आपका कृपा मेरा एकमात्र सार है। वृंदावन रम्य स्थान सेवा कुंजो तार नाम श्री राधा दामोदर स्थिति, ताहार चरणे मुई एकांत आश्रय लई कृपा करी करमोर गति। तो यह हम एक देख सकते हैं, भक्ति का प्रार्थना किस तरह होता है। पहले दीक्षा गुरु, उसके बाद शिक्षा गुरु इन जनरल साधारण, उसके विशेष रूप से और जिस विशेष कृपा है, उसके बाद आता है विश्वकर, फिर दीक्षा गुरु का ज्यादा महत्व है सबके बीच में, और चैतन्य महाप्रभु पंचतत्व, उसके बाद राधा कृष्ण हमारे। इस तरह हम वो प्रणाम मंत्र देखते हैं, वंदे अहं श्री गुरु श्रीजित पाद कमल, वह क्या देखते हैं, वंदे अहं श्री गुरु गुरुदेव, उसके बाद श्री गुरून अर्थात जितना सारे शिक्षा गुरु है,
उसके बाद सर्वोच्चम, उसके बाद पंचतत्व, उसके बाद राधा कृष्ण। तो ये हमारी प्रार्थना करने का सिस्टम है। तो यह वृंदावन में राधा कृष्ण कौन? वृंदावन ब्रह्म स्थान शिवा कुंज तार नाम श्री राधा दामोदर स्थिति। जो मंदिर में रहते हैं, जो मंदिर में रहते हैं, सोचना पड़ेगा वही भगवान तो एक ही राधा कृष्ण है, लेकिन जो मंदिर में रह रहा है समझना चाहिए भगवान वो रूप में हृदय में व्यवस्था है। हम नहीं देख पाता है, इसलिए हमको कृपा करने के लिए बाहर में वो रूप में आया है। तो यह प्रभुपाद प्रार्थना कराए राधा दामोदर को, क्योंकि राधा दामोदर मंदिर रहते थे। और वो राधा दामोदर मंदिर कहां पर? वृंदावन में सेवा कुंज, वो जगह का नाम है सेवा कुंज। जिस तरह राधा कुंज में उधर में, इधर में राधा दामोदर मंदिर जो जगह में, उस जगह का नाम सेवा कुंज। वृंदावन रम्य स्थान, रम्य स्थान अर्थात रमणीय आनंदमय स्थान। और वृंदावन में जो रमणीय आनंदमय स्थान, उनमें से विशेष कौन? सेवा कुंज। सेवा कुंज विशेष राधा दामोदर मंदिर। ताहार चरण मुई एकांत आश्रय लई कृपा करी कर मोर गति। मैं उनके चरण में एकांत आश्रय ले रहा हूं, आप कृपा करके मुझको उद्धार कीजिए, मेरा गति कीजिए। श्री गीतार गाने तुम्हार चरण थुई लह मोर यही पुष्पांजलि। ये किसको दे रहा है? ये पुष्पांजलि राधा दामोदर का अर्पण कर रहा है। श्री गीतार गाने, ये क्या पुष्पांजलि दे रहा है? भगवत गीता का गान रूप पुष्पांजलि दे रहा है। श्री गीतार गान यही तुम्हार चरण थी लह मोर यही पुष्पांजलि। प्रभुपाद राधा दामोदर को पुष्पांजलि दे रहा है ये भगवत गीता गान रूप में। और दीनता के साथ बता रहा है कि जाने की लिखा आमी एकांत भरोसा तुम्ही जे लिखाओ सही पद्यावली। मैं किया लिख रहा हूं मेरा पता नहीं है। ये जो पद्यावली, पद्यावली अर्थात बांग्ला कविता, इसको पद्यावली बोलते हैं। पैर छंद, मैं पैर छंद में भगवत गीता लिख रहा हूं, लेकिन मेरा कोई योग्यता नहीं है, लेकिन एकमात्र भरोसा आप है। आप जो लिखाते हैं मैं वही लिख रहा हूं। एकांत भरोसा में जे लिखाओ, आप जो लिखा रहे हैं मेरा हाथ से। अभय चरण तब आश्रय सर्वदरब यही मोर नित्य काल आश। मेरा नित्य काल एक ही आशा है, मैं अभय चरण आपका चरण में हमेशा ही रहूंगा। भक्ति वेदांत बोले आमी किंतु दास होले विमोचन ए मायार फास। भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद बोल रहा है आमी किंतु दास होले, मैं यदि आप एक बार दास बन सकते, अर्थात आप यदि मुझको दास रूपे स्वीकार करेंगे, विमोचन ए मायार फास, तो ये जो माया का फास में सारा दुनिया में जो आदमी फंसा हुआ है, लेकिन आप यदि मुझको दास रूपे स्वीकार करेंगे तो हम आपका दास के रूप में सबको माया से मुक्त करेंगे। भक्ति वेदांत बोले आमी किंतु दास होले। भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद बोल रहा है मैं यदि आपका दास हूं। जैसे भक्तों, ये तो अहंकार क्या? अहंकार नहीं है। जिस तरह नित्य अद्वैत आचार्य बोलते हैं मैं यदि कृष्ण का दास हूं तो उनको अवतरण कराऊंगा। ये दास का अभिमान है। मैं यदि दास हूं, मेरा प्रार्थना क्यों नहीं सुनेंगे? यदि मैं दास हूं तो मैं जरूर कृष्ण का अवतरण कराऊंगा। तो इसी तरह भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद कहता है मैं यदि दास बनूंगा तो ये दुनिया से सब विमोचन ए माया फास। और प्रभुपाद करके भी देखा है, सारा दुनिया को माया से मुक्त करके देखा। ये बहुत सुंदर रूप में प्रभुपाद भागवत गीता ज्ञान प्रदान किया है। तो हम आशा करते हैं ये भागवत गीता ज्ञान बहुत सरल रूप में दिया है प्रभुपाद। ये गीता ज्ञान में संक्षिप्त तात्पर्य शब्द दिया है, ताकि जो समझ में हमको आएगा उतना तक, ज्यादा तो व्याख्या संभव नहीं है, थोड़ा व्याख्या दिया जितना वो श्लोक का कंटेक्स्ट, वो प्रसंग में जितना होना बहुत जरूरी है उतना भी साथ में दिया है, ताकि संस्कृत श्लोक पढ़ के जितना समझ में नहीं आता है ये गीता ज्ञान पढ़ बहुत आसानी से समझ में आते हैं। तो हम
शिल प्रभुपाद का प्रार्थना करते हैं। उन्होंने ये भगवत गीता ज्ञान रचना किया है, तो हम ताकि उनका पाठ करके उन्होंने जो चीज समझाना चाहते थे हम वो समझ जाए। प्रभुपाद ने हर गीता ज्ञान का लास्ट में लिखा है, क्या लास्ट तो लाइन, भक्ति वेदांत कहे श्री गीतार गान सुने यदि शुद्ध भक्त कृष्ण का तो प्राण। उन्होंने चाहते हैं शुद्ध कृष्ण का तो प्राण भक्त ये श्रवण करे, अर्थात भक्ति वेदांत शिल प्रभुपाद चाहते हैं शुद्ध कृष्ण का तो प्राण भक्त इसका श्रवण करेंगे। तो हम उल्टे करके बोलेंगे जो श्रवण करेंगे जरूर हो, जो जरूर शुद्ध भक्त है। तो हमारे सुनने की इच्छा नहीं है तो हम कृष्ण का तो प्राण नहीं है। यदि हमको सुनने की इच्छा नहीं है तो हम शुद्ध कृष्ण का तो प्राण नहीं है। यदि सुनने की इच्छा होगा तो हम कृष्ण का तो प्राण है। कुछ तो लक्षण आ गया है, सुनने की इच्छा हो रहा है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जाए। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। वो ये तो प्रणाम किया और विशेष कृपा प्रार्थना कर रहा है। उन्होंने एक तो सब प्रणाम करके आया, तो बीच में भक्ति सिद्धांत यहाँ पर फिर विशेष कृपा जरूरी है। वो श्लोक में प्रणाम करके आया, अभी कृपा प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, ये गीत अर्थात गान है, तो गान का गान किया तो वो आंसर में पहले दे दिया है। ये भगवत गीता, इस तरह गीता गीता बोलते अभी गीता एक पुस्तक हो गया है। ये अभी गीता अर्थात भगवत गीता बोलना जरूरत नहीं, गीता अर्थात गीता है। ये अभी गीता एक शास्त्र हो गया है, अभी वो नाम में चल रहा है। जिस तरह मान लीजिए मलेरिया, मेल एयर, दूषित वायु, क्या दूषित वायु से मलेरिया होता है क्या? लेकिन अभी मलेरिया शब्द अर्थ है मच्छर काटने से जो बीमारी, उसका नाम मलेरिया है। लेकिन अभी उसको नहीं देखना है कि मेल ईयर की बैड ईयर को से दिन है। तो अभी वो ये शब्द आ गया गीता अर्थात एक वैदिक शास्त्र है, बस उसको गान रूप में देना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद रचित गीता गान की सामित गौर भक्तवृंद की गौर प्रमानंद।